we are going to study about cyclic group, examples of cyclic group, and then we will study for some properties of cyclic group. Okay. I think first of all you know what is group. Okay. आपको पता है होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है. That must be a binary operation. Under a binary operation star, the set G will be called a group if it satisfies some property. That is, first property is closure property. If star there must exist identity E, जिसको हम डिनोट करते हैं, there must exist for all A, there must exist A inverse हर एक एलिमेंट का inverse and associativity. That means A star B star C is equal A star B star C. ये तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है. ये ग्रुप का इंट्रोडक्शन है. Now we are going to study what is cyclic group. What is cyclic group? Okay. So definition ऐसा होगा cyclic group का definition. Cyclic group. आप कॉपी निकाल लीजिए और लिखते जाइए. Cyclic group. A group G. A group G under the binary operation star is said to be a cyclic group. A cyclic group. A cyclic group if there exists an element, if there exists an element suppose the element A, if there exists an element A such that the element A can generate all the elements in the group C. If there exists an element A such that every elements of G can be generated by A. Okay, generated by A. Okay, ये साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन है. अभी कुछ एक्स्ट्रा लिख रहा हूं. The element A is called generator of the group. Element A is called generator of the group. We write the group G, okay, is generated by A. This is the symbol G is cyclic. G is equal this A. Okay, G is cyclic. That means G is generated by A. इसका मतलब ये है G is generated by A. That means G is cyclic. Okay. तो ये तो हो गया. अभी ये ग्रुप G generated by A. तो ग्रुप G का एलिमेंट किस तरह का होगा? The type of the elements of the group. How to look like the elements of the group G. So G is equal. This is the A to the power. All the elements can be written as A to the power n. A to the power n. ऐसा फॉर्म में होगा. A to the power n फॉर्म में होगा हर एक एलिमेंट. Such that A is generator, so A to the power n. Such that
n belongs to z plus n क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा दैट मीन्स n का वैल्यू 1 होगा n का वैल्यू 2 होगा n का वैल्यू 3 होगा ऐसा मतलब ऐसा भी हो सकता है आप इसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल a square a cube a to the power n बस इतना एलिमेंट ओके इस ग्रुप में कितना एलिमेंट है 1 2 3 n एलिमेंट है ओके if order of the group is n that means g has n elements and the n elements if order of the group g is n then g has n elements the n elements are this these are the n elements ये हुआ ना बात ओके कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं किसी बुक में ये नहीं लिखकर तो ये z प्लस है ना ये अभी नोट डाउन कर लीजिए कभी कभी ऐसे भी मिलेगा n बिलोंग्स टू z ऐसा भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो यहाँ पे सिंबल जो है a टू द पावर 0 a टू द पावर 1 a स्क्वायर अप टू 0 से स्टार्ट हुआ ना n माइनस 1 ऐसा होगा इसके बाद अगर कोई भी n इज इक्वल सपोज आपने ये n से बड़ा नंबर ले लिया सपोज n इज इक्वल n से बड़ा नंबर ले लिया तो रिपीट होगा एलिमेंट्स जो होगा रिपीट होगा यहाँ पे g का जनरेटर क्या है a ऐसा नहीं है कि g का जनरेटर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा g कैन हैव मोर देन वन जनरेटर ऑल्सो अभी लीजिए से सपोज n इज इक्वल टू 5 तो आपको एलिमेंट क्या क्या मिलेगा a टू द पावर 0 a to the power 1 a to the power 2 a 3 a to the power 4 a to the power 5 मिलेगा कि नहीं a to the power 5 भी मिलेगा लेकिन a to the power 5 a to the power 5 that will be equal to a to the power 0 because ऑर्डर क्या है n है रिपीटेशन होगा यहाँ पे a to the power 5 भी आएगा a to the power 6 भी आएगा ऐसे आते जाएगा पर a to the power 5 will be this a to the power 6 will be this okay तो ये हम किस फॉर्म में लिख रहा हूँ सेट की फॉर्म में लिख रहा हूँ इसीलिए एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए तो ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ से चला जाएगा तो अगर g will be this if order of g is equal to n if order of g is equal to 5 then g will be this type okay और आप गौर कीजिए एक बात नोटिस कीजिए ऑर्डर ऑफ ए भी कितना होगा 5 होगा ग्रुप का जो ऑर्डर और एलिमेंट का जो ऑर्डर दोनों सेम होना चाहिए मतलब समझ रही है तो ये हो गया बेसिक सम डेफिनेशंस एंड सम कॉन्सेप्ट अबाउट साइक्लिक ग्रुप now I am going to tell you some examples of cyclic group you can pause this video and note down in your on your copy and I will remove this now now example क्या क्या होगा तो G is a group that may be finite or may be infinite that means आपको infinite cyclic group भी मिलेगा सब finite cyclic group भी मिलेगा तो पहला एग्जांपल जो लेते हैं वो है Z Z is the set of
integers. This is a group under the operation addition. Okay, ये सब तो आपको मालूम होना चाहिए. That is a group under the operation. Identity क्या है? 0 is the identity element here. Okay. Minus A is the inverse. Minus A is the inverse element of A. Minus A is the inverse element of A. एसोसिएटिव भी होता ही है. मतलब 5 का इनवर्स क्या होगा? -5. 6 का इनवर्स -6 लाइक दैट. सो एक ग्रुप होता है, आइडेंटिटी होता है, इनवर्स भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है. किसी भी 3 इंटीजर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c ऐसा होता है. सो एसोसिएटिव होता है. सो ये ग्रुप होता है. तो अभी हम चेक कर रहे हैं क्या ये एंड क्लोजर भी होता है. इफ a b belongs to z, if belongs to z, a plus b also belongs to z. ये होता है कि नहीं? किसी भी 2 इंटीजर को ऐड कीजिए, आपको इंटीजर ही मिलेगा. वो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो या चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो. सो z is a group. Okay, z is a group. Now we have to check that is this group is cyclic. That is our. Okay, तो आपको मालूम हो गया कि ये ग्रुप एक ग्रुप होता है. अभी बात चल रही है कि ये साइक्लिक है कि नहीं. सो z का इंटीजर्स, z का सेट को लिख लेते हैं पहले. 0 1 -1 2 -2. इसे लिखने से ऐसे लिखना बहुत अच्छा होगा. -3 -2 -1 0 1 2 3. ये सेट है. आप और भी लिख सकता है, लेकिन लिख के आप तो खत्म नहीं कर सकता है इसको. सो ये होता है z. नाउ ये हो गया है z. इसको नहीं पहनने से अच्छा होगा. ओके, सो ये हो गया है z. अभी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. देखो, दिस कैन बी राइट एज -3 into 1 -2 into 1. लिख सकते कि नहीं? -1 into 1 0 into 1 1 into 1 2 into 1 3 into 1. वो एडिशन की बात हो रहा है, आपको यहाँ पे डॉट दे दिया मल्टीप्लिकेशन. कोई टेंशन नहीं. मैंने आपको एक बात बताना भूल गया, जो अभी मैं बताना जा रहा हूँ, जो मैं अभी नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द थिंग, द फैक्ट. ये जो हमने लिखा था g इज इक्वल a टू द पावर n, n बिलोंग्स टू z, ऐसा लिखा था. मैंने z प्लस भी लिखा था, उसके बाद z भी लिखा था, अभी z लिख रहा हूँ. तो कोई बात नहीं, सेम नहीं है. ओके, g इज इक्वल टू दिस. ये क्या है? a टू द पावर n. दैट मींस a into a. मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए ही लिखा. अगर ग्रुप g एडिशन के लिए ग्रुप है तो हम क्या लिखूंगा? What we will write when g is the group under addition? If g is a group under multiplication, then this is. If g dash is a group under addition, then a plus a ऐसे जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ था a to the power n, that means a into a how many times? n times. n times मल्टीप्लिकेशन हुआ था. अभी क्या होगा यहाँ पे? प्लस a. एडिशन होगा n times. n times क्या होगा? एडिशन होगा कि नहीं?
इसको ऐसे लिख रहा हूं n times n belongs to z. अभी इसको ऐसे लिख सकता हूं n times a2 since n times so it is equal to n into a such that n belongs to z. So ये होता है z अगर ग्रुप होता है अंडर एडिशन then that can be written as na. The every elements of z can be written as n into a where a is the generator of this group n into n belongs to z. N belongs to z and a is the generator of this group. Like that we can write this group g under addition. हो गया ये एडिशन के लिए दिखा ये मल्टीप्लिकेशन के लिए जो भी ऑपरेशन है उसके लिए आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये किसका ग्रुप है z एडिशन का ग्रुप है। तो अगर ये एडिशन का ग्रुप है तो कैसा होगा तो इसको हटा रहा हूं अभी के लिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट काम का चीज है। सो ओके सो z इज इक्वल ये क्या हो रहा है देखो -3 -2 into 1 -1 0 into 1 1 into 1 2 into 1 3 into 1 means what n into 1 these all are n into 1 such that n belongs to z. ये -3 -2 -1 0 1 2 3 कहां से आए इंटीजर से आ रहा है so n into 1 that means what n is the generator of this group हर एक एलिमेंट को 1 से जनरेट हो पा रहा है कि नहीं every elements are generated by n is it yes n का वैल्यू ही आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं देखिए है ना n का वैल्यू ही आपने यहाँ पे पुट कर रहे हैं n का वैल्यू -3 n का वैल्यू -100 लिया तो आपको मिलेगा -100 n का वैल्यू 0 लिया तो 0 into 1 आपको मिला 0 n का वैल्यू 2 लिया 2 into 1 आपको मिल गया 2 ऐसे ही इंटीजर सेट का हर एक एलिमेंट आपको मिल जाएगा you have to just change the value of n. What is the generator? What the element that generating this all the elements that is 1 so generator of z is the group under addition generated by 1 इस सेट का एक जनरेटर हमें मिल गया 1 we can have more than one generator यहाँ के इस ग्रुप का और भी एक जनरेटर है you have to comment below what will be the another generator of this group okay you have to comment so अभी ये आपको एक मैंने एग्जांपल दिया जो कि एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है now I'm going to tell you some examples that is of finite cyclic group ऐसे ही आपको एक ग्रुप मिलेगा सपोज ग्रुप G is equal is 1 minus 1 I minus इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I minus 1 minus I 1 ओके ये कितना एलिमेंट है 4 एलिमेंट है मतलब ऑर्डर ऑफ जी कितना है 4 है क्या ये ग्रुप होता है ये ग्रुप होता है आपने अगर ग्रुप पढ़ा है तो आपको मिलेगा ये ग्रुप जो है ना ये एक ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन because these elements are what the elements in this group are fourth root of unity that means x to the power 4 is equal to 1 ये जो पोलिनोमियल है इसका रूट जो है they are forming this group that means values of x these are when this will implies x is equal when you solve this you will have the values x is equal to 1
x is equal -1, x is equal I, and x is equal minus I. These four, it has four roots, so these are the four roots. If you are not able to find its roots, then comment below. I will make a video where I will see you to finding this, if okay, this root. Okay, I will make a video on this. Okay, so ये हो गया ना. तो ये एक ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन. नाउ वी हैव टू सेट whether it is a cyclic or not. For being cyclic, if Z is a group Z, you have to find an element A in Z such that order of Z is equal order of A. मैंने वहां पे क्या कहा था, जब मैंने इससे पहले पढ़ा रहा था, मैंने जब शुरू किया था अभी क्लास के, जब साइक्लिक ग्रुप पढ़ा रहा था, आपको यहाँ पे मैंने दिया था आज से इसी वीडियो में, तो मैंने वहां पे कहा था कि ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर सेम होना चाहिए. और मैंने क्या कहा था, इस हर एक एलिमेंट को जनरेट करने वाला ऐसा अगर हमें एक एलिमेंट मिल जाए तो भी होगा. इन दोनों तरीके से कर सकते हैं. तो नाउ आई एम लुकिंग दैट if there is any element which can generate this group, okay, ऑपरेशन करके जाइए एलिमेंट. सपोज यहाँ से एक एलिमेंट लिया 1 के साथ ऑपरेशन करते जाइए. ऑपरेशन क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट है. दिस इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, इज ए ग्रुप, दिस इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. अभी यहाँ से 1 एलिमेंट को लाइए, इसको करते जाइए 1 into 1, नेक्स्ट 1 into 1 into 1, आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 1 एक ही एलिमेंट को आपको मिलते जाएगा. अभी एक काम कीजिए, -1 के लीजिए, 2 एलिमेंट मिलेगा. -1 को एक बार कीजिए मल्टीप्लिकेशन, -1 मिलेगा. -1 को 2 बार मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1, 2 एलिमेंट मिल गया, है ना. जैसे ही -1 से जो जनरेट हुआ, 1 से जो जनरेट हुआ वो सिर्फ 1 ही है. और -1 से जो जनरेट हुआ, पहले -1 सेकेंड 1 है. पहले -1 इंटू -1 को किया ही नहीं ऑपरेशन, तो -1, तो -1 को 1 टाइम्स ऑपरेशन किया, मैंने -1 इंटू -1 किया, 2 टाइम्स किया, आपको क्या मिला, 1 मिल गया. अभी -i को लेकर देखिए क्या मिलेगा, -i इंटू -i, माइनस का i तो माइनस का, पहले माइनस का i को 1 टाइम्स किया, पावर 1, क्या होता है, a टू द पावर n होता है. n इज इक्वल 1 लिया, है ना. n इज इक्वल 1 के लिए आपको फिर क्या मिलेगा, -i ही मिलेगा. n इज इक्वल आपने 2 लिया, आपको क्या मिलेगा, -1 इंटू -i इंटू -i, आपको क्या मिलेगा, -i इंटू -i, माइनस का माइनस प्लस i इंटू i स्क्वायर, दैट विल बी -1, आपको क्या मिलेगा, i स्क्वायर इज इक्वल -1. n इज इक्वल टू 3 लीजिए, क्या मिलेगा, i क्यूब इज इक्वल i स्क्वायर इंटू i, एंड i स्क्वायर इज इक्वल टू -1. ये तो क्या था, -1 का क्यूब था, राइट, ठीक है, नहीं -1 लिया था ना, अभी ये -1 के लिए रहा हूँ. सो -1 का क्यूब, आपको क्या मिलेगा, -1 का -i का क्यूब, है ना. तो आपको क्या मिलेगा, -i का स्क्वायर, उसके साथ -i किया, तो आपको मिलेगा -i का स्क्वायर. हमने यहाँ पे निकाला था, ये क्या, -i इंटू -i का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1 n इंटू -i, आपको क्या मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस i. नेक्स्ट क्या मिला, i मिला, और क्या मिलेगा, n इज इक्वल 4 लिया, आपको क्या मिलेगा, -i की पावर 4 मिलेगा. दैट मीन्स व्हाट इज दिस इक्वल टू, -i की पावर क्यूब इंटू -i, ये मिलेगा. उसके बाद आपको क्या मिलेगा, -i की पावर क्यूब किया, -i की पावर क्यूब किया, तो आपको क्या मिला था,
ये मिला था माइनस आई, सॉरी प्लस आई। तो प्लस आई मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ n इज इक्वल टू 4 माइनस आई की पावर 4। आपको क्या मिलेगा? माइनस आई की पावर क्यूब इंटू माइनस आई। आपको क्या मिलेगा? माइनस आई की पावर क्यूब क्या, तो n इज इक्वल टू माइनस आई की पावर क्यूब क्या मिला था? आई मिला था इंटू ये क्या है माइनस आई, राइट, इंटू माइनस आई। सो माइनस आई इंटू आई, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर मीन्स माइनस माइनस वन प्लस वन। आपको क्या मिल गया? प्लस वन मिल गया, है कि नहीं? तो माइनस आई को करते चाहिए, आपको क्या मिला? माइनस आई मिला माइनस आई की पावर वन, माइनस आई की पावर टू क्या? माइनस वन मिला, माइनस आई की पावर थ्री क्या? आई मिला, माइनस आई की पावर फोर क्या? वन मिला। एन इज इक्वल 5 के लिए भी देखिए क्या है? माइनस आई की पावर 5, दिस विल बी इक्वल टू माइनस आई की पावर 4 इंटू माइनस आई की पावर 4 क्या है? 1 1 है, दिस विल बी 1 इंटू माइनस आई। क्या मिल गया? माइनस आई मिल गया। तो माइनस आई की पावर 5 करते जब आप करते हैं तो आपको क्या मिला? माइनस आई मिला। दैट मीन्स ये माइनस आई फिर से रिपीट हुआ कि नहीं? और मैंने कहा था रिपीट होगा, है ना, रिपीट होगा। और उसके बाद n इज इक्वल टू 6 के लिए आप पुट कर सकते हैं, आपको ये मिलेगा। n इज इक्वल 7 के लिए पुट करते ये मिलेगा, 8 के लिए पुट करते इसके साथ इक्वल मिलेगा। ऐसे ही आपको मिलते जाएगा। और मैं आपको बता दूं, आप ये चेक कर सकते हैं पुट करके, यू कैन चेक बाय पुटिंग दिस वैल्यूज। इफ यू दिस ऐसे अगर जो ग्रुप जनरेट होगा वही इस सेम ग्रुप होगा, माइनस आई, सॉरी आपको मिलेगा ये जिस ग्रुप ये सभी एलिमेंट आपको मिल जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। मतलब आपको इस ग्रुप में, इस ग्रुप जी में, ये जो ग्रुप हमने डिफाइन किया ग्रुप जी में, दिस ग्रुप इज जनरेटेड बाय माइनस आई and it also generated by, that means this group we have to find just only one generator, but now we have find two generator in this group, so it is a finite cyclic group। आपको एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप मिल गया, आपको एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप मिल गया। नेक्स्ट वीडियो में we will discuss that every subgroup of a cyclic group are cyclic, that means ये एक एलिमेंट के ये जो है ना, ये ये भी ये क्या होगा? ये सब ग्रुप होगा, ये भी सब ग्रुप होगा। दिस इज ऑल्सो साइक्लिक, दिस इज ऑल्सो साइक्लिक, दिस इज ऑल्सो साइक्लिक। मतलब उसका जो भी सब ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा। वो सब ग्रुप क्या है आपको, आई होप यू नो अबाउट सब ग्रुप, ओके। एंड देन वी विल डिस्कस एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। वो तो बहुत सिंपल है। So in the next class we will discuss about the properties about cyclic group। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, अगर वीडियो मिलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं चाहते तो नहीं करना, कोई बात नहीं। सब्सक्राइब करते हैं तो कमेंट करते हैं तो हमको इंस्पायर मिलते हैं, हमको एनर्जी मिलते हैं और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।